Hi everyone, it's me Sanghi and welcome back to my channel. So today is September 24th and it's the day 20 of daily vlogging. And guys, as you all read by today's video title, आज की daily vlog में मैं आप लोगों से share करने वाली हूँ some of my scary, ghost or some frightening stories. So yes, brace yourself because it's going to be some really interesting stories. And yeah, without further ado, let's get started with this video. The reason why I'm making this video is because मेरे recent मैंने जो paranormal activity वाला video बनाया था ना, उसमें I received a few comments. Some of you shared your experience in the comment section and वो पढ़ के oh my god मुझे भी goosebumps आया and it felt like so relatable कि okay, I'm not the only one who is going through this kind of experiences that कि you know ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. And उसके साथ साथ I've also received comments from you guys telling me to do more of this story time and do more of you know कि मेरा और कोई ghost या paranormal stories अगर है तो you wanted me to share it with you guys. So here I am. And talking about like ghost stories, ऐसा मतलब मैंने कोई you know physical manifestation of ghost या फिर कुछ ऐसा encounter ऐसे वाले तो मैंने कुछ experience नहीं किया है, but I have seen some you know like objects and I have heard sounds, or let's say like I have been in the presence of certain energy, you know जिसको क्या बोले अब हम spirits, ghosts या I mean, I don't know in particular कि हम इसको क्या नाम दें, okay? So the first one is, I think it dates back to 2004 or 5. I think उस वक्त पे मैं class 2 या 3 ऐसे में थी. I don't really have very you know vivid memory, but थोड़ा बहुत जो भी मुझे याद है I'll share it with you guys, okay? So it was during the winter time. Probably November या December के टाइम में होगा. तो ऐसे हॉस्टल था हमारा and उस वक्त पे I think 15-20 स्टूडेंट्स ऐसे कुछ होंगे हमारे हॉस्टल में. So हम लोग का एग्ज़ाम I think ख़त्म हो गया था and हमारे सीनियर्स का 2 दिन पेपर रह गए थे. So you know we had our dinner and everything, और डिनर वगैरह सब करके it was chilly winter night, so we wanted to light some fire and you know जो आग सेकने का मन कर रहा था. So जितना भी हम लोग का एग्जाम्स खत्म हो गया था, we were seated outside and my mom was also there, and at the time my neighbor, one auntie, she lives quite close by, so वो भी आए थे हमारे हॉस्टल में. एंड आउटसाइड जो आंगन में ना हम लोग ने ऐसा टिन में काट वगैरह मतलब वुड्स वगैरह डाल के ना फायर लिट किया था. एंड whoever had finished the exams, you know, we were outside, like I think क्या हम लोग अंतराक्षरी खेल रहे थे या फिर कुछ बात कर रहे थे ना. Elderly people were talking their own, having their own guff and all that, okay? And I think our seniors and all were probably studying for the next paper. So कुछ ऐसा environment चल रहा था, okay? Like just imagine ऐसा कुछ environment चल रहा था. एंड उस वक्त में क्या होता है कि मेरे घर के लेफ्ट साइड में देयर इज़ अनदर रोड विच लीड्स टू अनदर विलेज, जो कि यहाँ से मतलब 2 या 3 किलोमीटर आप लोग अगर नीचे जाएंगे तो इट विल लीड यू टू अनदर विलेज ना. सो दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ओनली ड्यूरिंग द 2009-10 में ही शायद ये रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था. बट देन बिफोर दैट it just used to have like a narrow pathway, and of course narrow pathway which means you know rest of it is just jungle, right? So I think उस वक्त उतना लेट भी नहीं हुआ था. I think it was around like 8 to 9 p.m. ऐसे कुछ टाइम था, but it was winter, so it was quite pitch dark. So what happened was that we were in our own world and suddenly someone you know group में से किसी ने बोला कि अरे उतापट्टि the light बोल्दो रहेछ, which means like you know there is like a light is coming from that side, from that road, okay? And we all looked, we all fell quiet for a moment, and yes, we saw that you know very like ऐसा मतलब ऐसा क्या बोलूँ ऐसा light emit हो रहा था और इतना pretty light था. Like I don't know what it was, what it is or what it was, okay? But ऐसा light ऐसा blink हो रहा था, मतलब it was emitting light and again it was going dark. तो ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा था. And I think for 5 to 10 minutes we all just
observed very quietly कि क्या हो रहा है ऐसा करके ना. And since like जो हमारे neighbor आंटी आई हुई थे ना, she in order to reach her home, जो उतना दूर भी नहीं है, मतलब 1 या 2 मिनट का रास्ता है ना, तो she has to use that narrow pathway to go to her home. So I feel like she was also a little bit paranoid कि यार ये लाइट कहाँ से आ रहा है, how am I gonna return home, okay. So I think at the time हमारे हॉस्टल में like 6-7 ऐसे brothers वगैरह boys वगैरह थे who were in 8-9-10-7 ऐसे कुछ classes में थे ना. The boys like 6-7 boys and then aunt वो भी बहुत उनके मतलब she was also very courageous I would say. तो उन लोग ने ना क्या किया कि जो फायर हमने लीड किया था ना, उनका ही उन लोगों ने एक क्या बोलते हैं ऐसा लैंटर्न ना वुड में फायर लीड करके लैंटर्न बनाया. And after I don't know what discussion क्या हुआ, they went and you know like they tried to chase away that light because you know we all felt like it was some kind of negative energy या कुछ spirit था या कुछ था ना. तो वो लोग ऐसे ग्रुप में या ऐसा करके या हो ऐसा करके चले गए. Suddenly when you know like they were chasing after that light it blinked for few moments and it just vanished. So we heard the stories from them who went much closer to that source of light. तो उन्होंने बोला कि उन लोग जब यहाँ से शुरू किया था दौड़ना, they saw that the light was being emitted, but as they were getting closer to the light, you know, ऐसा मतलब वो light fade हो रहा था. So they were getting closer to the light and that light just faded. And जब तक वो लोग वो light के source की जगह तक पहुँच गया था ना, it had just vanished in thin air. And it's still a mystery to this date कि what was it, क्या था वो, whether it was a good sign or a bad sign, okay. And later on my mom and all shared this thing कि you know they talked about this to like our relatives and neighbors, you know, बात ऐसे करते ना कि अरे हमारे ऐसे से हमने witness किया था कल रात को ऐसे करके. And actually my mom was sharing that you know few people told her that it could actually have been नागमणि या नागमणि था. तो कितने सारे लोग ने मेरे मॉम को बोला कि आपको you know शोर शराबा ना करके साइलेंटली जाकर उसको मतलब पकड़ लेना था. It would have brought you lots of wealth. ऐसा भी लोग ने शेयर किया है. But you know when you are at that moment, तो ऐसा मूवीज में तो दिखाते हैं ना कि लोग साइलेंटली घोस्ट को फेस करते हैं या फिर कुछ ऐसे एनर्जी को एनकाउंटर करते हैं. बट इन रियलिटी इट्स सो डिफरेंट, लाइक यू कैन नॉट हेल्प बट गेट पैनिक्ड, यू नो. तो हाँ, दैट वाज वन ऑफ द लाइक स्केरी बोलो या फैसिनेटिंग, यू नो, ऐसा कुछ स्टोरी था. सो आई एम स्टार्टिंग विद द लिटिल लाइट वन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टोरी. ये भी आई थिंक इट डेट्स बैक टू अराउंड that time only, like उसी time frame की ही बात है. Now this story is from the actual winter vacation, मतलब winter vacation हो रहा था हम लोग का, okay. And my dad, he was in duty, so उनका duty उस वक्त दूर था ना, तो he used to come only like once or twice a week, okay. कभी तो वो आ भी नहीं पाते थे because he was in force, है ना. So my dad was not at home. I don't know where my brother was at that time. My brother, he must have been at my grandma's home. या फिर पता नहीं वो कहाँ था, but he was not at home. Okay, so it was me, my mom, जो again हमारे जो पड़ोसी आंटी है वो भी थे, and one more auntie was there. Like she is the tenant who lives in like my grandmom के बाड़ी में रहते ना, tenant है. तो वो हम लोग 4 थे और उनकी नहीं, हम लोग 5 थे बिकॉज उनका भी बेटी थी. सो आई थिंक हर चाइल्ड वाज ऑल्सो अराउंड 6-7 years old at that time, okay. उस वक्त पे यू नो वी डिड नॉट हैव डिश टीवी वगैरह नहीं था, तो हम लोग के पास चैनल्स वगैरह नहीं थे. वी हैड दिस, क्या बोलते हैं हम लोग के पास DVD थे ना, DVD भी नहीं, VCD. We used to have VCD and we used to bring cassettes, like we used to lend cassettes from one shop, है ना. वहाँ पे हम लोग एक दिन का 10 या 20 rupees पे करते थे. So वो कैसेट लेकर हम लोग मूवी देखते थे ना. एंड फेमस लाइक हम लोग ज़्यादा नेपाली मूवी उस वक्त पे बहुत यहाँ पे देखते थे, ओके, कैसेट्स में.
तो ऐसे करके उस वक्त पे हम लोग ने एक नेपाली मूवी होगा लेकर आए थे ना. राइट नाउ सो मच हैज़ चेंज्ड इन माई विलेज. अभी तो जहाँ देखो घर ही घर है, गाड़ी ही गाड़ी है, स्ट्रीट लाइट्स है. लाइक इट हैज़ डेवलप सो मच कंपेयर टू अर्लियर, राइट. बट उस वक्त में उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था. लाइक स्टिल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वर स्टिल जंगल, यू नो. एंड हमारे लाइक इन सिक्किम वी बिलीव इन दिस सर्टन थिंग्स विच इज़ कॉल्ड एज लेमलेमे. लेमलेमे को क्या बोलते हैं? इज इट अ येती और आई डोंट नो. येती तो नहीं हो सकता बिकॉज येती एंड ऑल तो इट लिव्स इन स्नो एंड ऑल. नो, आई डोंट नो. इट्स काइंड ऑफ लाइक वन मान्छे जस्तो. वन मान्छे भनौँ लेमलेमे भनेको. आई डोंट नो लाइक इफ एनी वन क्यान ट्रान्सलेट lemleme or one manche in English, hey, then I'll be really grateful. And that lemleme in Bhutia language we call it as pyotem. Okay. Oh my god, like even saying the name pyotem is like giving me goosebumps. But okay, so हम लोग ऐसा pyotem या lemleme ऐसे में लाइक ऐसा होता है करके हम विश्वास रखते हैं ना. तो हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो ये लेमलेमे या फिर जो प्योतेम है ना, वो ऐसा मतलब क्या बोलूँ, वो ऐसा विसल करता है. क्योंकि जब भी वो आता है ना, कहीं पर वो आता है, वो ऐसा विसल देता है. ओह माय गॉड, मुझे सोच के गूज़बम्स आ रहे थे. माय गॉड, व्हाई डिड आई रिकॉल दिस स्टोरी. आज रात फिर मुझे बहुत डर लगेगा सुनने में. तो ऐसा विसल करता है. ओके, मैं उसका विसल इमिटेट नहीं करूँगी बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये भी बिलीव करते हैं कि अगर वो जब विसल करते हैं ना, अगर हम लोग उसका विसल को रिप्लाई बैक करेंगे तो वो हमको ढूंढ के आएगा और ले जाएगा. मतलब माई चाइल्डहुड ट्रॉमा. बचपन में जब हम लोग बहुत बदमाश करते थे, रात को सोने को नहीं मानते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स एल्डरली बोलते थे सो जाओ वरना प्योतेम आके ले जाएगा. तो ऐसा मतलब क्या हुआ कि हम लोग ओके प्योतेम मैंने डिस्क्राइब कर दिया ना कि प्योतेम क्या है या फिर लेमलेमे क्या है करके. तो हम लोग ऐसा मूवी देख रहे थे और मूवी देखते देखते आई थिंक बहुत रात हो गया था. क्योंकि अब उस टाइम पे क्या होता है ना, मतलब मूवी कैसेट 2 कैसेट होता है, इतना लंबा होता था उस टाइम का मूवी. तो आई थिंक रात का 10:30-11 ऐसा तो कुछ बज रहा था. और ये हमारा घर है और ये हमारा घर है. फॉर एग्जांपल ये घर है, तो इस साइड से घर के इस साइड में जंगल था ना उस टाइम पे. तो यहाँ से ऐसा आवाज़ आ रहा था कि वो कोई विसल करके आ रहा है. ओके, तो पहले किसी ने सुना, हमारे ग्रुप में से किसी ने सुना और उसने बोला ओए तुम लोग को ऐसा आवाज़ सुनाई दिया. किसने बोला? वो आंटी ने बोला या मम्मी ने बोला या किसी ने बोला. तो फिर हम लोग ने ऐसा मूवी का साउंड थोड़ा कम किया, ठीक है, कम किया. और फिर हम लोग ने ऐसा ध्यान से सुना, ठीक है, ध्यान से हम लोग सुने कि ये क्या आवाज़ आ रहा है. फिर हमने कुछ मतलब शोर नहीं किया, वी जस्ट स्टेड इन साइलेंट. एंड सच में हम लोग सभी को वो विसल सुनाई दिया. ओके, और वो बहुत ऐसा करके ऐसा टाइप का हो रहा था कि वो इधर चल रहा है उधर चल रहा है और वो विसल कर रहा है करके, ठीक है. और फिर ऐसे ऐसे करके वो चला गया. मतलब वो फिर से वापस डीप जंगल है ना नीचे, तो वो वहाँ को चला गया, उसका आवाज़ वहाँ पे चला गया. और हम लोग इतना फ्रीक आउट हो गए थे. आई थिंक वो रात को तो वो आंटी जो हमारे नेबर आंटी और हमारे टेनेंट आंटी और उनकी बेटी, आई थिंक वो लोग भी हमारे घर में ही सो गए थे. बिकॉज इवन मी एंड माई मॉम वी वाज स्कैर्ड टू स्लीप अलोन. एंड हम लोग तो उस वक्त रात को जब टॉयलेट गए ना, पहले के टाइम में टॉयलेट हमारे घर से बाहर होता था ना, तो हम लोग उस रात को क्या किया, हम लोग टॉयलेट भी साथ साथ चले गए डर के मारे ना. तो ओ माय गॉड, अभी तो कितना बदलाव आ गया है, कितना मतलब अभी तो ऐसे डीटीज या फिर घोस्ट से खतरनाक तो हम ह्यूमंस बन गए. ओके, लाइक आई एम मोर स्केर्ड ऑफ ह्यूमंस राइट नाउ कंपेयर टू दिस स्पिरिट्स एंड ऑल. अभी तो सच्ची बोलूँ तो.
Anyways guys, those are all my scary stories, and I hope you all enjoyed listening to this one. If you guys also have some, similar or any kind of such scary experiences, then feel free to share, or feel free to write them down in the comment section. I would love to read them.